دوحہ میں جاری جنگ بندی مذاکرات میں بڑی پیش رفت، حماس کا اسرائیلی نژاد امریکی ایڈن الیگزینڈر کی رہائی اور دوہری شہریت کے حامل 4 افراد کی لاشیں حوالے کرنے پر اتفاق۔ حماس رہنما حسام بدران نے کہا ہے کہ ثالثوں کی جانب سے مذاکرات کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کی یقین دہانی پر مثبت جواب دیا۔ حماس جنگ بندی معاہدے کو مختلف مراحل میں نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کوئی بھی انحراف ہمیں دوبارہ چوک پر لے جائے گا۔ ایران پر نئی امریکی پابندیاں قانون شکنی اور منافقت کا واضح ثبوت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پابندیوں سے ثابت ہو گیا مذاکرات کا امریکی دعویٰ محض دھوکہ ہے۔ آزاد ممالک کے خلاف پابندیوں اور دباؤ کی پالیسی کا امریکی نشہ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا اہلیان غزہ کو مشرقی افریقہ کے 3 ممالک میں منتقل کرنے کا منصوبہ۔ فلسطینیوں کو سوڈان، صومالیہ اور صومالی لینڈ میں بسانے کے لیے بات چیت۔ فلسطینیوں کی آبادکاری پر تینوں ملکوں کو مالی، سفارتی اور سلامتی کی متعدد مراعات دی جائیں گی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل اسموٹرچ نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل ان ممالک کی نشاندہی کے لیے کام کر رہا ہے جہاں غزہ کے لوگوں کو بسایا جا سکے۔ غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا کر بھی اسرائیلی فوج ہار گئی۔ فلسطینیوں کی ہمت اور حوصلے نے صہیونی فوج کا جبڑ توڑ دیا۔ غزہ میں ملبے پر افطار کی ویڈیو دنیا بھر میں توجہ کا مرکز۔ کھنڈرات پر افطار کرتے نوجوانوں کی مسکراہٹ، فتح کا اعلان۔ 11 تاریخ کو 1 بجے کے قریب جو سا ہے یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین تھی آئی ڈی کے ذریعے اس کو انٹرسیپٹ کیا، تو دے لارج نمبر میں دے ریڈڈ دیٹ ایف سی پکٹ، وہاں پہ 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے، ہاسٹیج لیا۔ اس میں سے ایک گروپ جو ہے جس میں زیادہ بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا، باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لیا۔ 12 مارچ کی صبح جو ہماری ایف سی اور جو ہماری آرمی کے ٹروپس وہاں پہ ان کانٹیکٹ ہے جنہوں نے اس پورے ایریا کو کارڈن کیا ہوا تھا، بالکل قریب تھے اس کے، تو دے انگیج، فرسٹ انگیجمنٹ کرتے ہیں گراؤنڈ پہ سنائپر کے ذریعے۔ بھارت جعفر ایکسپریس دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ، دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھارت کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے۔ خارجیوں سمیت افغانی بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ افغانستان سے جدید غیر ملکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو ہر قسم کی اسپیس مل رہی ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہوا جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا۔ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹیررسٹ گروپ کی جو پروپیگنڈا ویڈیو ہے اس کو انڈین میڈیا بار بار چلا کے دنیا کو دکھا رہا ہے۔ ایک ایکٹیویٹی وہاں چل رہی، ایک ایکٹیویٹی دنیا کے سامنے اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے، اس کی ترویج کرنے کے لیے انڈین میڈیا چلا۔ دہشت گردوں کی سپورٹ میں انٹرنیشنل وارفیئر بھی چل رہی تھی۔ انٹرنیشنل وارفیئر کو انڈین میڈیا لیڈ کر رہا تھا۔ انڈین میڈیا پروپیگنڈا کے طور پر جھوٹی ویڈیوز بار بار چلا رہا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ انڈین میڈیا اپنی ویڈیو میں دکھا رہا تھا کہ ٹرین جل رہی ہے۔ دہشت گردوں کو بھارتی میڈیا سپورٹ کر رہا تھا۔ بھارتی میڈیا پرانی ویڈیو سوشل میڈیا سے اٹھا کر چلاتا رہا۔ ایسا تاثر دیا گیا کہ دہشت گرد انسان دوست ہیں، اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ کو بلوچوں کے حقوق سے جوڑا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کو بلوچ نہ کہا جائے۔ ایسے واقعات کا بلوچستان کی روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے یرغمالیوں کو بازیاب کروایا۔ بہادر افواج کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ چین، امریکہ، ترکیہ، بحرین اور دیگر ممالک نے بھی دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی۔ جس ایفیشنسی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف مقابلہ کیا، ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا اور پوری ملک کے سامنے ان کو بے نقاب کیا ہے، میں وہاں کی صوبائی حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سلام پیش کرتے ہیں۔
पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगी। कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे खुशी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके ये बहुत एक टफ टेरेन में एक अच्छा ऑपरेशन करके APS जैसे सेकंड वकुआ रोनमा होने से बचा लिया। हम सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ दी है कि इस मसले पे अलायंस अपने तरफ से एक कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाए या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और सानहा APS होने से रोक दिया। PTI हालिया दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। हमने तजवीज़ दी है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। असद कैसर बोले, मैंडेट चोरी करने वाले क्या पॉलिसी बनाएंगे, ये सिर्फ सोचते हैं कि कैसे PTI को तोड़ा जाए। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। जहां PTI का फसादी टोला बैठा हो वहां मुत्तहिद होना मुश्किल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफूद अफगानिस्तान भिजवाने में मसरूफ है। कौमी असम्बली इजलास में PTI वालों ने मुजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं बोला। वज़ीर आज़म ने मामले को अच्छी तरह टैकअप किया। मालूमात तक रसाई मज़ीद आसान, सिंध हुकूमत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जानिब अहम कदम। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल का इफ्ताह। तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को एक साला कारकर्दगी पर मुबारकबाद। कहा, हम मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करते, मज़बूत सियासत पर यकीन रखते हैं। हम ज़राई शोबे की तरक्की चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके लोग बेहतर रोजगार की तरफ जा सकेंगे। बिजनेस कम्युनिटी और मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद इस्तेफादा करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सूबाई हुकूमत सिंध की तरक्की के लिए कोशा है। नौजवानों की सोच है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिले। हुनरमंद नौजवानों को मौक़े फराहम कर रहे हैं। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। माशी और इक्तिसादी बहाली पर IMF मुतमईन। हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन ने पाकिस्तान को $2 अरब फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग और $1.1 अरब EFF प्रोग्राम की किस्त जारी होगी। IMF मिशन के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे की राह भी हमवार। IMF मिशन इब्तदाई बयान वाशिंगटन से जारी करेगा। वज़ीर आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई क़िल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत। चीनी की खपत और रसद और मुक़र्ररा कीमतों पर फराहमी का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेल कर उसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए। बीजिंग अंडरपास में शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर में पेश आने वाले वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG ऑपरेशंस की हिदायत के बावजूद दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं की गईं। सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख करवाने के लिए महकमा दाखिला से राबता। कराची में डाकू ईडी लूटने में मसरूफ। पुलिस भी डाकुओं के खिलाफ एक्शन में। टीपू सुल्तान पुलिस ने मुकाबले में जख्मी डाकू गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नदीम के साथी फरार। असलहा बरामद। सखी हसन के करीब शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मॉडल कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। मॉडल अदाकारा नादिया हुसैन के FIA ऑफिसर पर इल्जामात। साइबर क्राइम विंग कराची ने पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA का कहना है कि सोशल मीडिया पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना कानून में जुर्म है। नादिया हुसैन के इल्जामात हकायक के मुनाफी हैं। नादिया हुसैन ने FIA की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां, कानून शिकनी और मुनाफिकत का वाज़ेह सबूत। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा है कि पाबंदियों से साबित हो गया मुज़ाकरात का अमरीकी दावा महज धोखा है। आज़ाद ममालिक के खिलाफ पाबंदियों और दबाव की पॉलिसी का अमरीकी नशा बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए खतरा है।
तो हमें जारी जंग बंदी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। हमास का इजरायली निजात अमरीकी एडान अलेक्जेंडर की रिहाई और दोहरी शहरियत के हामिल 4 अफराद की लाशें हवाले करने पर इत्तेफाक। हमास रहनुमा हस्साम बदरान ने कहा है कि सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू करने की यकीन दहानी पर मज़बूत जवाब दिया। हमास जंग बंदी मुआहदे को मुख्तलिफ मराहिल में नाफिज करने के लिए पुरआज़म है। इजराइल की तरफ से कोई भी इन्हिराफ हमें दोबारा चौक पर ले जाएगा। अमेरिका और इसराइल का अहलियान गजा को मशरिकी अफ्रीका के 3 ममालिक में मुंतकिल करने का मंसूबा। फ़लस्तीनियों को सूडान, सोमालिया और सोमाली लैंड में बसाने के लिए बातचीत। फ़लस्तीनियों की आबादकारी पर तीनों मुल्कों को माली, सिफारती और सलामती की मुतादिद मराहत दी जाएंगी। इजरायली वज़ीर ख़ारिजा बेज़लेल स्मोट्रिच ने तस्दीक की है कि इजराइल इन ममालिक की निशानदेही के लिए काम कर रहा है जहाँ गजा के लोगों को बसाया जा सके। गजा को मलबे का ढेर बनाकर भी इजरायली फौज हार गई। फ़लस्तीनियों की हिम्मत और हौसले ने सहूनी फौज का जबर तोड़ दिया। गजा में मलबे पर इफ्तार की वीडियो दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। खंडरात पर इफ्तार करते नौजवानों की मुस्कुराहट, फतह का ऐलान। माह रमजानुल मुबारक की पुरकैफ व पुरनूर सातों में GTV न्यूज़ आपके साथ। माह मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमजान। सहर इफ्तार में तिलावत कलाम पाक व नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। 13 रमजानुल मुबारक की इफ्तार से कबल उलमाए कराम की पाकिस्तान में तालीमी इदारों का इन्हितात और इस्लाही तजावीज़ पर गुफ्तगू। शेफ सिखा रहे हैं रोज़ाना मज़े मज़े के पकवान। कौमी टीम न्यूजीलैंड से सीरीज जीतने के लिए पुरआज़म T20 स्क्वाड की क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। सलमान अली आगा कहते हैं कि टीम की तैयारी अच्छी है, सीरीज में अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी टूर का ऐलान। ट्रॉफी कराची से हैदराबाद पहुंच गई, लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। लोमिनारा ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी। ट्रॉफी टूर के दूसरे मरहले का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी से मौसम सर्द। फोर्ट अब्बास, फैसलाबाद में बारिश के साथ जालाबारी से जाती सर्दी दोबारा से लौट आई। बिहाड़ी, खानिया, बूरेवाला, तौसा शरीफ, बहावलनगर और चिश्तिया में बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश से मौसम दिलफरेब, जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। कराची में दिन के औकात में गर्मी का जोर, दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मोहब्बत से रंगों की बारिश। लाहौर के कृष्णा मंदिर में होली का शानदार जश्न। हिंदुओं के त्यौहार का आगाज खुसूसी इबादत से हुआ। बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन सभी रंगों में नहा गए, एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया।